Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I help you in biology for board level as well as NEET level in different types of competitive examinations in medicals. Okay, without losing our time, we directly come to our point. Dear students, in the very beginning, we have seen different types of higher category, taxonomic and higher category of the diversity in the living world in this chapter. Species, genus, family, class, order already we have seen. Five higher categories already have seen. Just once more a time, just now I go to be repeat it again. Species, genus, family, class and order. Already we have discussed in previous lecture. Now next lecture is, sixth lecture is our phylum. This is very important point. With this point, at least two questions comes, not two for at least one question every year it comes from this point. Dear students, classes. Last point was classes. Class. First, just now one upon the time, just now repeat and recall for all of you. Species, genus, family, class, and order. Fifth ones already we have delivered the lecture regarding this higher taxonomic category, and sixth one is phylum. Classes is fifth one. Classes is fifth one. Already we have seen. Classes comprising the animals like there are different types of animals. This is the branch of the zoology. This is the branch of zoology. Life science of animals. Okay, bachcho. Now, classes comprising animals like fishes. Fish is commonly known as ichthyology. Study of fish, what is known as ichthyology. No doubt. Ichthyology. Ichthyology. Amphibians, these are called dual life. Dual life. Dual life of animals. Especially comes from, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे डिफरेंट टाइप्स का फ्रॉग के बारे में आप पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. एंड रेप्टाइल्स, दिस इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी. पेटोलॉजी, और इसी का दूसरा नाम दिया गया सरपेंटोलॉजी. इन डील्स विद स्नैक्स. Deals with snacks. स्नैक्स. स्नैक्स के क्रीपर एनिमल्स को, क्रिप्टाइल एनिमल्स को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी एंड सरपेंटोलॉजी. नेक्स्ट, बर्ड्स, इसको कहा जाता है एब्स. एब्स के फाइलम को कहा जाता है बर्ड्स के फाइलम कहा जाता है एब्स अलोंग विद द मैमल्स. मैमल मींस आपको हमने बताया those animals whose body is covered with the help of the soft fur, soft hair. And next common characteristic features of mammal is giving the direct birth of their young ones. This is called the mammals, including human beings. Human beings. Okay, bachcho. Next point. Just now going to repeat. Classes comprising animals like fishes, that is called ichthyology. Amphibians, this is called the dual lives on any as far as terrestrial or aquatic or aerial.
The three places they pass their discerning life. That is why it is known as dual life of animal comes frog. Frog lives inside the water. Frog lives on the tree. Frog lives on the terrestrial land. That's why this is called the dual life. यानी प्रॉब्लम बच्चों, और फ्रॉग जो एक ही जगह नहीं रहता है, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, टाइम टू टाइम, 1 year alternate, every time repeats this question. Those places where the amphibians cannot pass their descending life with descending life at least 1 minute, 1 मिनट वहां जिंदा नहीं रह सकता है. तो ये प्लेस है फ्रॉग का मरीन वाटर, समुद्री जगह में ये नहीं पाया जाता है. एक ही जगह है, एक ही जगह ऐसा है ये ड्यूअल लाइफ एनिमल्स का, देयर दे कैनॉट सर्वाइव फॉर अ सिंगल सेकंड. 1 सेकंड भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज इनसाइड द मरीन वाटर salt, completely salt water, completely block their pores of their skin. ठीक है बच्चों, हाँ, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, मैं इंट्रोडक्टरी क्लासेस में मैं बता दिया इतना. तो बर्ड्स को बोलते हैं एग्स, एंड अलोंग विद द मैमल्स, आपको मैंने बताया मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी इज कॉल्ड द फाइलम. और ये सारे के सारे ये 7 फाइलम्स है, इस्थियोलॉजी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स. आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट, ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड. अब व्हाट इज नोटोकॉर्ड? क्वेश्चन राइजेस हियर. नोटोकॉर्ड, notochord especially, look at here बच्चों, notochord especially present in the back of the brain in the rhombencephalon. Rhombencephalon is found here. So human body is completely divided in 3 parts: presencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. ठीक है बच्चों, तो ये rhombencephalon हमारे पश्च मस्तिष्क में होता है, पीछे वाले पार्ट में होता है. And dorsal hollow neural system, dorsal hollow neural system, and all these are included in the phylum Chordata. और इसका जो है ये स्पेशली Chordata family में आता है. In the very beginning I have noted down and delivered the lectures in front all of you dear students. Pay attention and recall these sentences. All the chordates are not vertebrate and all the vertebrates may not be called the chordates. मैंने आपको बताया था. तो इसमें जो है कॉर्डेट्स जो है ये नोटोकॉर्ड ब्रेन के पीछे वाले बैक पार्ट में पाया जाता है. एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डाटा. तो पहले कॉर्डाटा हम लोग सिखाते थे, इसका 3 एग्जांपल्स होता था. हेमी कॉर्डाटा, हेमी कॉर्डाटा. दूसरा है यूरोकार्डाटा, और इसी को कहा जाता है ट्यूनिकाटा. मैं बता दे रहा हूं, ट्यूनिकाटा. ट्यूनिकाटा इसलिए कहा जाता है बच्चों, इसके टेल में एक पॉइजन पाया जाता है. और कोई भी एनिमल्स इस पर अटैक करता है तो अपने टेल को बहुत जोर से झकझोरता है, उसमें एक लेदरिंग टाइप का केमिकल रिलीज होता है जो पॉइजन का काम करता है, और फ्रंट वाले एनिमल्स को वो सेंसलेस कर देता है और वो अपने आप को वहां से रेस्क्यू कर दूसरी जगह चला जाता है. इसलिए उस केमिकल का नाम है ट्यूनिसिन. मैं बता दे रहा हूं, ट्यूनिसिन. That's why it is known as tunicata. Euro means tail. यूरो में मैंने पहले ही बताया, इसके टेल में एक केमिकल्स पाया जाता है जो कि पॉइजन का काम करता है. अगर कोई भी प्रेडेटर्स आता है इस पर अटैक करता है तो ये अपने टेल को बहुत जोर से पानी के अंदर झकझोरता है, जिससे एक केमिकल रिलीज होता है. उस केमिकल का नाम है रिलीज, जो कि एक
प्रकार का स्पेशल पॉइजन है और सामने वाले प्रेडेटर्स को वह सेंसलेस कर देता है। और थर्ड वन है सीफेलोकॉर्डाटा। सीफेलोकॉर्डाटा, ठीक है बच्चों, ये तीन है कॉर्डाटा में। अब इसके ये जो है, ये तीनों जो है दे आर कंप्लीटली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया में अब पाया ही नहीं जाता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। पहले था लेकिन अब इसको ओमिट कर दिया गया, मैं बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस, अब इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो इस फाइलम जो है एनिमल्स के क्लास को, डिवीजन को बाइफरकेट करता है, सेग्रीगेट करता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हम लोग आते हैं इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद a few similar characters are assigned to a higher category called division। मैंने पहले ही बताया था phylum और division both are same but segregate animals and plants। Phylum separates animal beings and division separates all the plant beings। Like same systematic positions of division in phylum, animals have different types of family, and also plants have different types of family like Solanaceae, Malvaceae, Cruciferae, Poaceae, Liliaceae, etc. etc। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा बच्चों, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी टर्म एज डिवीजन। ये स्पेशली डिनोट्स और डील्स विद प्लांट्स फैमिली, ठीक है बच्चों। और ये फाइलम जो है इंडिकेट करता है एनिमल्स। प्लांट्स को आप कर लीजिए, फैमिली इसका अलग हो जाता है, सबका अलग अलग फैमिली है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने कॉर्डाटा के बारे में बताया, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा जिसको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, और सिफेलोकॉर्डाटा। तो हेमिकॉर्डाटा जो है इसके यंग वंस को बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है बच्चों। और यूरोकॉर्डाटा के यूरो मीन्स टेल, यूरो मीन्स टेल मैंने पहले ही बताया आपको बच्चों, यूरो मीन्स टेल इसके। और ये तभी रिलीज होगा जब इस पर कोई भी एनिमल अटैक करेगा, इसका एनिमी अटैक करेगा, और उसके टेल से एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि पॉइजन का काम करता है, उस पॉइजन का नाम है ट्यूनिसिन, ठीक है। और थर्ड वन है सिफेलोकॉर्डाटा। अब ये तीनों जो है आपके एनसीईआरटी से ओमिट कर दिया गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलेगा, रेफरेंस बुक में देखेंगे तो इसी का एग्जाम्पल डिटेल्स मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉर्डाटा, ये जो है मेमल्स, ये एनिमल्स को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बच्चों? एनिमल्स को। ये फाइलम मैंने पहले ही लिखा, ये फाइलम इंडिकेट करता है एनिमल्स को। इसमें पाइसेस, पाइसेस को मैंने ऊपर में कहीं लिखा है, इस्थियोलॉजी में फिर लिख दे रहा हूं, इस्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश, दैट इज कॉल्ड इस्थियोलॉजी, डोंट कंफ्यूज। नेक्स्ट एम्फीबिया, अब मैंने पहले ही बताया कहीं आपको, फ्रॉग, इसको बोलते हैं ड्यूअल लाइफ, फ्रॉग, ड्यूअल लाइफ एनिमल्स, और एक ही जगह ये सरवाइव नहीं कर सकते, दैट प्लेस इज कॉल्ड मैरीन वाटर। मैरीन वाटर में एक एग्जांपल के लिए आप देख लो, एक दो बावल ले लो, आप दो बावल ले लो, एक फ्रेश वाटर बबल और एक साल्ट वाटर बबल। बावल समझते हो, कटोरा जिसको कहते हो, है ना, पानी रखने वाला। तो एटलीस्ट 1 लीटर कंटेनर्स यू टेक, ठीक है, किसी भी कंटेनर में लिख लो 1 लीटर फ्रेश वाटर एंड 1 लीटर सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में एक फ्रॉग को डालो और एक फ्रॉग आप सॉल्ट वाटर में डालो। फ्रेश वाटर को फ्रॉग जो है वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव करेगा, और ये सॉल्ट वाटर जो है विद इन 1 to 3 मिनट्स में दे कैन कोलैप्स, दे कैन डाई, बिकॉज उसके स्किन में जो पोर्स होते हैं, मैंने कहीं लिखा है बच्चों, सॉल्ट वाटर कंप्लीटली
block their pores of their skin. वह स्किन से भी सांस लेता है, ठीक है। इसके टर्म को अलग हम बताएंगे क्या बोलते हैं आगे, पहले इंट्रोडक्टरी में देख लीजिए। उसके स्किन को ही वह ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते विदाउट टेकिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन नो एनिमल्स कैन सर्वाइव इजिली, ठीक है। कोई भी एनिमल इजिली विदाउट रेस्पिरेशन का, विदाउट ब्रीदिंग का सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता है, उसका जो हीमोग्लोबिन है वह प्यूरिफाई नहीं होगा। जब प्यूरिफाई नहीं होगा तो एक ही जगह वह क्लॉट के रूप में जमा हो जाएगा, बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके बॉडी में वो हीमोग्लोबिन जो है सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। दैट मींस क्लॉट एंड ऑटोमेटिकली दे पास अवे। चलिए हम लोग आते हैं। तो अब ये कॉर्डाटा में पाइसे, जिसको इस्थियोलॉजी बोलते हैं, एम्फीबिया, ड्यूअल लाइफ, फ्रॉग बोलते हैं, रेप्टिलिया इसको हर्पेटोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी कहीं मैं लिखा हूं, ये स्नेक के फैमिली को बोलते हैं। ऑल द स्नेक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे। और इसके बाद आता है आपका एब्स, जिसको हमने आपको बताया था स्टडी ऑफ बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एब्स। और मेमल्स के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही जाते हैं, इंक्लूडिंग अस, है ना। अब इसके बाद एंजियोस्पर्मा। एंजियोस्पर्मा मींस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बच्चों? फ्लावरिंग, दोज प्लांट्स हु गिव द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मा। नो डाउन, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर होगा तो फ्रूट्स भी होगा, सीड्स भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्मा। नाउ, तो एंजियोस्पर्मा, दिस इज डिवीजन। हियर डू द कंपैरिजन डियर स्टूडेंट्स। हियर इज फाइलम, indicates animals, and angiosperma, this is the flowering plant, and division indicates especially flowering plants, especially flowering plant। और ये दो प्रकार का होगा। एंजियोस्पर्मा इज टू टाइप्स, ओनली टू टाइप्स, नॉट अदर वंस। डाइकोटिलेडन्स, डाई मींस उसमें दो, जैसे ग्राम पल्स को देखोगे, अगर पिल्स को आप ओपन करो उसमें दो वेब्स होते हैं। उसी तरह से आप देखोगे लेथाइरस, लेथाइरस का नाम सुना होगा आपने, ग्राम, इसमें दो पल्प होते हैं। लेथाइरस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है खेसारी। मैं हिंदी में लिख रहा था खेसारी, लिखने नहीं आता मेरे को, खेसारी। हाँ, और उसी तरह से आप देखा होगा मूंग, इसमें भी दो पल्प होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडनी। दो पल्प, अगर ऊपर के पल्प पिल्स को हटा देंगे सीड के, इसमें दो पल्प होते हैं, जैसे ग्राम, लेथाइरस, और इसके बाद आप देखेंगे क्या मूंग, ठीक है। इसके बाद मोनोकोटिलेडन। ये मोनो मीन्स होता है बच्चों सिंगल, वन। ये स्पेशली इसका एग्जांपल है वेट, और इसका बायोलॉजिकल नेम हमने बताया था सैटिवम, सैटिवम एस्टिवम। अब आपको समझ में आ गया बच्चों ये फाइलम क्या है। तो फाइलम में आपको मैं एक बार, एक सेकंड में मैं और रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों। कंप्राइजिंग ऑल द एनिमल्स लाइक द फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स constitute the next higher category that is termed as phylum। और इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका है, फिश के बारे में एस्थियोलॉजी, एम्फीबियन, ड्यूअल लाइफ, फ्रॉग, दे ओनली कैनॉट सर्वाइव इनसाइड द मैरीन वाटर। इसके बाद आप बर्ड्स को आप देखा होगा, बर्ड्स में, और बर्ड्स में क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको मैं आगे बताऊंगा। इसमें सिंगल ओवरी होता है। क्या होता है बच्चों? ओनली लेफ्ट ओवरी, दैट्स व्हाई द रीजन बर्ड्स गिव द ले एग्स, बर्ड्स ले एग्स। अगर कोई क्वेश्चन करता है बर्ड्स एग ले क्यों करते, वो डायरेक्ट बेबी को क्यों नहीं बर्थ देता है, क्योंकि बर्ड्स कंटेन्स ओनली लेफ्ट ओवरी, और डायरेक्ट बर्थ के लिए ड्यूअल ओवरी का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हमने बताया ये स्पेशली होता है रोमेनसेफेलॉन में, बैक ऑफ द ब्रेन में, फर्स्ट मस्तिष्क में होता है। ब्रेन का तीन पार्ट होता है, प्रोजेंसेफेलॉन फ्रंट हेड, मेसेनसेफेलॉन मिडिल हेड,
मिडिल ब्रेन और रोम्बेनसेफलॉन बैक, पश्च मस्तिष्क हिंदी में बोला जाता है। तो ये उसके बाद आता है नोटोकॉर्ड और इसके बाद आता है डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ऑल दीज इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डाटा। कॉर्डाटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, एनसेफेलोकॉर्डाटा। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और इसके बाद इन केस ऑफ प्लांट्स, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. Division especially deals only plants. Division क्या करते हैं बच्चों? Deals only plants. तो मैंने लिख दिया deals only plants. For example, अब हम लोग आते हैं comparatively, हम लोग comparatively देखते हैं phylum, phylum और division. Phylum indicates animal and division indicates plants. तो फाइलम में आपका पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एंजियोस्पर्मा। एंजियोस्पर्मा इज फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट इंडिकेट्स द डिवीजन। और एक होता है जिम्नोस्पर्मा, उसमें उसको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्मा, जिम्नोस्पर्मा इसको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके बच्चों, अब इसमें एंजियोस्पर्मा में जो होता है इसमें 2 प्रकार के फ्लावरिंग होगा तो सीड भी होगा, ठीक है। सीड में इसके 2 प्रकार होते हैं, डाइकोटिलेडन, 2 पल्प होते हैं। मैंने एग्जांपल कहीं लिखा है, ग्राम, लेथारस और मूंग। आप दाल खाते होंगे। और इसके साथ साथ आपका लेंटिल भी है। आपका लेंटिल मीन्स मसूर दाल, ठीक है। मसूर दाल क्या लिखते हो हिंदी में आप लिख लेना बच्चों। और मोनोकॉटिलेडन्स, मोनो मीन्स सिंगल, जिसे व्हीट, सटिवम या स्टिवम। अब समझ में आइए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर इज किंगडम, विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, थैंक यू बच्चों।